Now, in the second clip, we will discuss first of all very important reactions and how will you approach the reactions. So, जो भी रिएक्शन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ फर्स्ट उसको कॉपी कीजिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. इफ सपोज आई विल गिव यू वन a chain reaction. You have benzene. Benzene reacts with HNO3 and H2SO4 का mixture. Benzene react with HNO3 H2SO4 का mixture. This is nitrating mixture. So this you will have first step में nitrobenzene. If suppose second step में आपने लिया CH3COCl in the presence of anhydrous AlCl3. ये रिएक्शन मैंने डिस्कस किया था फ्रीडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन में. सो NO2 जब भी आप सेकंड ग्रुप का अटैक कराओगे तो पहले ग्रुप का आपको नेचर देखना है. NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. वी नो दैट NO2 इज -R and -I. So next electrophile CH3COCl is Friedel-Crafts acylation. This is generate CH3CO plus as electrophile. So now you will get a product which is NO2 and NO2 के meta पे you have COCH3. Now if suppose I will give you second reaction, you have benzene ring reacts with 2 moles of H2SO4. 2 moles of H2SO4, this is sulfonation. So first step में you will get benzene ring attached with SO3H. We know that SO3H is also -R and -I. So this is meta directing. So अगर मैं next में किसी का भी अटैक करा CH3Cl in the presence of AlCl3, this is Friedel-Crafts alkylation. So next electrophile attack on this group of this. So now SO3H is -R and -I. So CH3 इसके पैरा पे अटैक इसके मेटा पे अटैक करेगा. So you will get benzene ring attached with SO3H और यहां पर आ जाएगा CH3. So this name is 3,3-methyl sulfonic acid. Now I will give you third branch reaction. This is chain reaction also. You have benzene react with HNO3 H2SO4. Temperature is 313 Kelvin. So students, HNO3 plus H2SO4 का mixture is known as nitrating mixture. So first you will get benzene ring attached with NO2. सपोज मैंने यहां पर अटैक कराया अगेन HNO3 plus H2SO4. This is again generate NO2 plus electrophile. So this NO2 plus electrophile arrange according to this group. And we know that nitro is meta directing. So आपका next group NO2 के मेटा पे अटैक करेगा. If suppose you are आपने again अटैक कराया HNO3 plus H2SO4. So now this is also -R -I. Again जो NO2 जनरेट होगा वो इन दोनों के मेटा पे ही आएगा और दोनों का मेटा सेम है. देखो इसका मेटा भी ये है, इसका मेटा भी ये है. तो यहां पर आ जाएगा आपका NO2. इस तरह आपके कंपाउंड का नेमिंग होगा 1,3,5 ट्राइनाइट्रो बेंजीन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ब्लू बुक में भी ये क्वेश्चन है कि अगर मैं बेंजीन का 3 मोल्स ऑफ HNO3 प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दूं तो आपके पास क्या बनेगा. ब्लू बुक में ये क्वेश्चन है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आंसर है इसका 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन. क्वेश्चन नंबर 172 इन द ब्लू बुक. ब्लू बुक में क्वेश्चन नंबर 172 इज बेस्ड ऑन दिस ट्राइनाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विल गिव. आंसर होगा 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन. नाउ आई विल गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. मैं आपको एक और रिएक्शन दे रहा हूं.
Reaction number 4, you have benzene. बेंजीन पे अटैक कर रहा है C2H5Cl in the presence of anhydrous AlCl3. This is Friedel-Crafts alkylation. यहां पर C2H5 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, so you will have benzene ring attached with C2H5. We know that C2H5 is ortho-para-directing. अगर मैं यहां पर अटैक कराऊं HNO3 H2SO4 का मिक्सचर, तो आने वाला जो NO2 इलेक्ट्रोफाइल होगा वो किसके डायरेक्शन में होगा? C2H5. सो नाउ यू विल गेट बेंजीन रिंग अटैच विद C2H5 और पैरा पे बनेगा नाइट्रो. ऑलवेज रिमेंबर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में आपका जो चीफ ग्रुप होगा वो ऑलवेज पैरा बनेगा. ऑलवेज ये मेंशन कर लेना, पैरा इज ऑलवेज मेजर, ऑर्थो इज ऑलवेज माइनर. नाउ रिएक्शन नंबर 5 ये आपको खुद से करना है. Benzene ring reacts with Br2 in the presence of anhydrous AlBr3. Lewis acid यहां पर आपको दे सकता है anhydrous FeBr3. So you will get A again reacts with Br2 anhydrous AlBr3. You will have B. So first step, in the first step Br2 generate always Br plus electrophile, so you will get benzene ring attached with Br. Br is ortho para directing because Br having lone pair of electrons, so आने वाला ग्रुप बने इसके पैरा पे अटैक करेगा. यहां पर भी Br, यहां पर भी Br. So name of compound is 1,4 dibromobenzene. 1,4 dibromobenzene. Now क्वेश्चन नंबर 6, ये सब रिएक्शन आपको लिखते हुए जाना है, वीडियो को पॉज करके सब रिएक्शन आपको लिखना है. 6 में यू हैव बेंजीन रिएक्ट्स विद CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3 will give you A. It will react with HNO3 H2SO4 का मिक्सचर will give you B. और अगर मैं इसका रिएक्शन अगेन करा दो HNO3 और H2SO4 के साथ, will give you C. This is also very important reaction. Now students, क्वेश्चन नंबर 6 में आप A प्रोडक्ट्स बनाइए. क्वेश्चन नंबर 6 में आपका A प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन रिंग अटैच विद CH3. दिस इज टॉल्विन. CH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एंड जब HNO3 H2SO4 अटैक करेगा तो यहां से NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा. दैट्स वाई CH3 के पैरा पे NO2 आएगा. यहां पर आ गया CH3 और यहां पर आ गया NO2. याद रखिएगा, जब आपका बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूटेड हो जाए और अगेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा जिधर आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा उधर ही आपका इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा. वी नो दैट NO2 इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. NO2 is deactivating group while CH3 is activating group. आपका इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटिंग ग्रुप इज ऑलवेज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. एक्टिवेटिंग ग्रुप का पैरा इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, तो आपका NO2 अप्रोच करेगा इसके ऑर्थो पे. तो नाउ यू विल गेट बेंजीन रिंग अटैच विद CH3. यहां पर आएगा NO2 और यहां पर भी आएगा NO2. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. नाउ I will give you 3-4 reactions और मैं आपको दे रहा हूं, सबको आपको सॉल्व करना है. 7 में you have benzene. It will react with Cl2 in the presence of FeCl3 which is anhydrous. FeCl3 AlCl3 सबके सब लुईस एसिड्स है, और मैंने बताया था लुईस एसिड क्यों लेते हैं, क्योंकि वो Cl- या X- को आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं. You will have A. It will react with 2 moles of H2SO4. Sulfonation will give you B. Again it will react with HNO3 plus H2SO4 का mixture will give you C. Identify C in this reaction. Now question number 8, you have benzene. It will react with Br2 in the presence of anhydrous AlBr3 will give you A.
it will react with CH3Cl या it will react with HNO3 plus H2SO4 का मिक्सचर 313 केल्विन पे will give you B and also react with HNO3 plus H2SO4 का मिक्सचर will give you C. Identify C. Question number 9. Benzene ring reacts with CH3COCl. Catalyst क्या होगा? Anhydrous AlCl3 will give you A. It will again reacts with Br2 in the presence of anhydrous AlBr3 will give you B. Also reacts with Br2 anhydrous AlBr3 C. तीनों रिएक्शंस में आप ABC तीनों प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे. सो नाउ वीडियो को पॉज करके आप तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो. आई विल गिव यू 5 मिनट्स प्लीज. इन द फर्स्ट रिएक्शन ए में बनेगा क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन, यू टेल मी क्लोरीन इज प्लस आर एंड माइनस आई. दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक. सो ऑर्थो मैंने बताया माइनर बनता है. ऑलवेज यू विल गेट मेजर. जब आपको दोनों पूछा जाए तो दोनों लिखेंगे. चीफ पूछा जाए तो आप पैरा बनाएंगे. नाउ सेकेंड रिएक्शन में आपका Cl के फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा SO3H. जब आपका बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूटेड हो जाए तो जब थर्ड ग्रुप अटैक करता है तो याद रखिएगा जो ग्रुप मोर एक्टिवेटेड होगा उसके ही पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका ग्रुप आएगा. नाउ Cl इज प्लस आर and minus I while SO3H is minus R and minus I. This is more deactivating group. इससे ये ग्रुप अच्छा है. This is the activating group. So now यहां से जो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू Cl आएगा. Cl इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट इसका पैरा ऑक्यूपाई है ऑलरेडी तो इसके ऑर्थो पे अटैक करवाना है. नाउ यू विल गेट बेंजीन रिंग अटैच विद Cl. यहां पर आ जाएगा NO2 और इधर आ जाएगा SO3H. This is very very important reaction. Now question number 8 में फर्स्ट बनेगा ब्रोमोबेंजीन. A ब्रोमोबेंजीन. दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. इसका पैरा एकदम से खाली है तो यहां पर फोर्थ पोजीशन पे आपका आ जाएगा NO2. We know that this is deactivating group, this is activating group. तो आने वाला ग्रुप इसके ऑर्थो पे आएगा क्योंकि इसका पैरा ऑलरेडी फिल्ड है. सो नाउ बेंजीन रिंग रिएक्ट्स विद Br. यहां पर है NO2 और यहां पर आपके पास जो ग्रुप होगा वो होगा NO2. नाउ रिएक्शन नंबर 9 में A. रिएक्शन नंबर 9 में A बनेगा बेंजीन रिंग अटैच विद COCH3. दूसरा बेंजीन रिंग COCH3 इज मेटा डायरेक्टिंग तो यहां पर आ जाएगा आपके पास COCH3 और इसके मेटा पे आएगा Br. We know that this is minus R minus I, this is plus R and minus I, so this is more activating. तो इसके ऑर्थो या पैरा, लेकिन याद रखिएगा इसके पैरा पे अटैक करेगा. So now you will have benzene ring COCH3. यहां पर आ जाएगा Br और यहां पर भी आ जाएगा Br. Now students, you solve all the question. This is very very important question. This is very very important question. Now लास्ट एंड फाइनल प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 10. बेंजीन रिंग reacts with Br2 in the presence of AlBr3 anhydrous. So first you will get bromobenzene. Now अगर मैं यहां पर अटैक कर रहा हूं C2H5Br in the presence of AlBr3 तो इसका ऑर्थो या पैरा, लेकिन आप रखिएगा कि ऑलवेज पैरा पे ही आपका अटैक करता है. सो नाउ यू विल गेट Br और यहां पर आ जाएगा C2H5. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 से 10 जो करवाए, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ आई विल डिस्कस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर राइट नाउ. मैंने बताया था बेंजीन अंडरगो इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन.
तो एक बात ध्यान रखिएगा, कई कई क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा 4 कंपाउंड्स और बोलेगा कौन से टाइप्स में आपका बेंजीन सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका जो बेंजीन होता है इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। मतलब अगर आपके बेंजीन रिंग पे प्लस आर एंड माइनस आई ग्रुप है तो आपका बेंजीन रिंग उतना ही रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्लीज मेंशन इट पेज नंबर 11 ऑन रेड बुक। इफ बेंजीन रिंग अटैच विद प्लस आर प्लस आई, बेंजीन रिंग पे जितना ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा बेंजीन रिंग उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। प्लीज प्लस आर माइनस आर का ऑर्डर इसमें आपको आना चाहिए। अगर आपका बेंजीन रिंग माइनस आर से अटैच है तो डेफिनेटली सबसे लेस रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपका बेंजीन रिंग माइनस आर से अटैच है तो सबसे लेस रिएक्टिव होगा, प्लस आर से अटैच है तो मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। पेज नंबर 11 पे मेंशन कर दीजिएगा। सो रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखवा रहा हूं। इफ बेंजीन रिंग अटैच विद प्लस आर एंड प्लस आई, मोर रिएक्टिव देन प्लस आर एंड माइनस आई, it is more reactive than minus R and minus I. This order is very very important for reactivity towards electrophilic substitution reaction. Please इसको mention कर दीजिएगा जिस भी ग्रुप में plus R and plus I. Please this lecture is very very important. मैं first clip में बता चुका हूं, second clip is also very very important. Please अच्छे से रिवाइज करना। प्लस आर माइनस आर ग्रुप पे और माइनस आई माइनस आर प्लस आर माइनस आई सब पे आपका अच्छा होल्ड होगा, तभी आपको ये अच्छे से समझेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, इन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलवेज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑलवेज प्लस आर प्लस आई is always more reactive than plus r minus I. It is always reactive than minus r minus I. Always अगर आपके ग्रुप पे कोई भी माइनस आर का ग्रुप अटैच है तो सबसे लेस रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर आपके बेंजीन रिंग पे प्लस आर प्लस आई का ग्रुप है तो दिस इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्लीज इसको अच्छे से लर्न करो। रेड बुक में पेज नंबर 15-16 पे आपको प्लस आर माइनस आर का ऑर्डर दिया है। If you revise, if you know better ZOC, definitely you done it, definitely. So please substitution reaction के लिए please again वहां पर लिख दीजिएगा पेज नंबर 11 पे, बेंजीन रिंग पे अगर मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा मतलब बेंजीन रिंग इज मोर रिचर, बेंजीन रिंग रिच होगा तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करेगा। So now if benzene ring attack with plus R, this is more reactive towards substitution reaction. If benzene ring attach with minus R, this is सबसे less reactive towards substitution reaction. This is very very important. और इस ब्लू बुक पे बहुत सारे क्वेश्चन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन पूछा है, वहां पर आपको चारों ऑप्शन का ऑप्शन देखना पड़ेगा और ऑर्डर निकालना पड़ेगा। नाउ आई एम सॉल्विंग ब्लू बुक ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। 76 क्वेश्चन अपन ने पहले ही सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में benzene reacts with CH3COCl in the presence of AlCl3 to give, this is Friedel-Crafts acylation. Benzene ring react with CH3COCl in the presence of anhydrous AlCl3. Always you will have benzene ring attached with COCH3. This is known as acetophenone. Now आपका आंसर होगा बी। Question number 78. Which of the following reaction is more common with aromatic compound? Always substitution. Question number 9. In the Friedel-Crafts synthesis of toluene के लिए आप बेंजीन पे किसका अटैक कराओगे? CH3Cl, CH3Br.
ध्यान रखना कैटलिस्ट लेना है एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस AlBr3। क्वेश्चन नंबर 80, which statement about the reaction of benzene with Cl2 in the presence of AlCl3 is correct? पहला, chlorobenzene is formed, true. This mechanism is electrophilic addition, wrong. This reaction is electrophilic substitution reaction. कभी भी बेंजीन रिंग केवल 3 रिएक्शन के साथ एडिशन देगा, ऑक्सोरोलिसिस, हाइड्रोजिनेशन एज वेल एज हेलोजिनेशन। सो यहां पर आपका आंसर होगा बी। बी आपके लिए इनकरेक्ट है। सी, द मैकेनिज्म गिव्स वाया इंटरमीडिएट कैटायन, डेफिनेटली इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। AlCl3 अपन कैटलिस्ट की फॉर्म में लेते हैं। तो नाउ आंसर इज बी फॉर क्वेश्चन नंबर 80। 81, एन NH2 सब्स्टिट्यूएंट इन एन एरोमेटिक रिंग इज, NH2 के NH2 जो है NH2 में नाइट्रोजन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण दिस इज प्लस आर। सो प्लस आर है तो एक्टिवेटिंग एज वेल एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। नाउ क्वेश्चन आंसर होगा सी फॉर क्वेश्चन नंबर 81। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 83 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 83 में आपको पूछा है the compound that is most reactive towards electrophilic nitration, electrophilic nitration आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है। तो मैंने क्या बोला था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलवेज फेवर व्हेन बेंजीन रिंग कनेक्टेड विद द प्लस आर ग्रुप। सो ऑप्शन ए में आपको दिया है बेंजीन रिंग अटैच विद CH3, बेंजीन रिंग अटैच विद CH3। बी में दिया है बेंजीन रिंग अटैच विद ओनली बेंजीन दिया है। सी, बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग अटैच विद COOH। और डी में दिया है नाइट्रोबेंजीन। वी नो दैट नाइट्रो इज माइनस आर, लेस रिएक्टिव, COOH is minus R, less reactive, but CH3 is plus R, more reactive. Benzene is also more reactive, but benzene ring पे CH3 हो गया तो benzene ring is more richer. So answer is A for question number 83. क्वेश्चन नंबर 83 में आपको आंसर दिया होगा A. Now क्वेश्चन नंबर 84. क्वेश्चन नंबर 84, anhydrous AlCl3 is used in Friedel-Crafts reaction because it is AlCl3 is Lewis acid, so definitely electron deficient. आंसर होगा D. Electrophilic substitution in phenol takes place at, we know that phenol का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग अटैच विद OH। ऑक्सीजन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण OH इज प्लस आर और प्लस आर होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सो यहां पर आपका आंसर होगा A. क्वेश्चन नंबर 86, द रिएक्शन ऑफ टॉलुइन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है आपको ओनली चीफ प्रोडक्ट्स लिखना है। सो टॉलुइन बेंजीन रिंग अटैच विद CH3 और इस पे अटैक करा रहा हूं मैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। सो वी नो दैट CH3 इज प्लस R एंड प्लस I, सो दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सो आने वाला Cl इसके ऑर्थो पे अटैक करना चाहिए, पैरा मेजर, तो आप बोलोगे पैरा। तो आपका आंसर होगा बेंजीन रिंग अटैच विद CH3 और पैरा पे आ जाएगा Cl। तो आपका आंसर होगा इसका प्रीडोमिनेंटली देगा पैरा, बट इसका आंसर में वो दिया नहीं है, तो इसका आंसर देगा ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन, बट मेजर इज पैरा क्लोरोटोलुइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, नाइट्रेशन इज इजी इन केस ऑफ, अगेन स्ट्रक्चर बनाओ, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, कुछ भी रिएक्शन पूछने दो, ऑल आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्ट्रक्चर बना के आपको चेक करना है कि किसमें ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ऑप्शन ए में दिया है टॉलुइन, टॉलुइन इज एक्टिवेटिंग। ऑप्शन बी नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो इज डीएक्टिवेटिंग, लेस रिएक्टिव। सी दिया है क्लोरोबेंजीन, सी दिया है क्लोरोबेंजीन, और डी दिया है आपको बेंजीन रिंग रिएक्ट्स विद, बेंजीन रिंग अटैच विद SO3H। ये दोनों तो लेस रिएक्टिव है। If benzene ring attached with minus R group, less reactive towards substitution. If benzene ring reacts with plus R and plus I, more reactive towards substitution reaction. Now आंसर हो जाएगा 87। 87 का आंसर हो जाएगा A टॉलुइन,
नाउ क्वेश्चन नंबर 88 आपको खुद से आना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड बी द बेस्ट रिएक्टेंट फॉर द फॉलोइंग सिंथेसिस, तो आंसर इसका सी आएगा। बेंजीन कैन सर्व एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई नोन एज न्यूक्लियोफाइल। Benzene add up molecule of chlorine to give benzene hexachloride 3 moles. Cyclohexane is obtained by the action of hydrogen on benzene in the presence of, आपने बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बनाया था। बेंजीन का फॉर्मूला था C6H6, साइक्लोहेक्सेन C6H12। तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए आपने कौन सा कैटलिस्ट लिया था? निकल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नाइट्रेशन मिक्सचर इज 2:1 का रेशियो इज नॉन एज ओलियम फॉर्मिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से कंपाउंड बनता है H2S2O7, दिस इज नॉन एज ओलियम। फिनोलिक OH ग्रुप इज, OH इज ऑर्थोपैराडायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग। 95 आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, इसको भी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। 96 में मैंने आपको नाइट्रेशन का मैकेनिज्म बताया था। क्वेश्चन नंबर 96 में आपने बेंजीन रिंग रिएक्ट्स विथ लिया था नाइट्रेटिंग मिक्सचर विच इज HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर। यू टेल मी, जब मैं मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा था तो H2SO4 HNO3 में विच इज मोर एसिडिक, H2SO4। तो अगर H2SO4 यहां पर एसिडिक नेचर शो कर रहा है तो डेफिनेटली HNO3 इस रिएक्शन में कौन सा नेचर शो करेगा? बेसिक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक नेचर, बिकॉज HNO3 है एसिडिक, बट H2SO4 अगर एसिडिक नेचर H+ डोनेट कर रहा है तो HNO3 का ऑक्सीजन लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा था, दैट्स व्हाई इट इज एक्ट एज ए बेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, असाइलेशन ऑफ और अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड इज कॉल्ड फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। अगर अल्काइलेशन है तो हो जाएगा फ्रीडल-क्रॉफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन है तो फ्रीडल-क्रॉफ्ट असाइलेशन। Now question number, benzene when heated with a mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid at about 313 Kelvin to 333 Kelvin gives always nitrobenzene. Now question number 99, formation of cyclohexane proceeded through reaction addition 3 moles of H2। 100 आपको आ जाएगा, 101 आपको आ जाएगा, 102। The process of introduction of group into the benzene ring is called as sulfonation, SO3H. When benzene ring attach with SO3H, known as sulfonation. Now, question number 103. Which of the following equation represent example of Friedel-Crofts reaction? आप चेक करो Friedel-Crofts किसमें बन रहा है? Friedel-Crofts आपका आंसर होगा A, benzene ring reacts with alkyl halide या असाइल हैलाइड। क्वेश्चन नंबर 104, द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इन फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन टू एडसॉर्ब, आपके Cl- को एडसॉर्ब कर लेता है AlCl3, तो एडसॉर्ब करता है न्यूक्लियोफाइल को। 105 इज वेरी सिंपल। 106, हेक्साक्लोरोबेंजीन इज फॉर्म व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्वेश्चन नंबर 107 आपको आ जाएगा, 108 आ जाएगा। 109, बेंजीन विद O3 फॉर्म्स ऑलवेज बेंजीन ट्राइओजोनाइड। ऑन ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन आर एडेड? 3 मोल्स। देन इस 113, ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन गिव ग्लाइओक्सेल 3 मोल्स ऑफ CHO। नाउ क्वेश्चन नंबर 114, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 114 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछा है राइट द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मैंने बताया था सबसे ज्यादा होता है +R+I, देन +R-I, देन -R-I। फटाफट सबके कंपाउंड का निकालना है। पहला है बेंजीन, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है। दूसरा है बेंजीन रिंग रिएक्ट्स विद CH3। तीसरा है बेंजीन रिंग रिएक्ट विथ Cl, और फोर्थ है बेंजीन रिंग रिएक्ट विथ नाइट्रो। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि नाइट्रो में -R और -I होता है, दैट्स वाई सबसे लीस्ट। 4 सबसे लीस्ट है, 4 सबसे लीस्ट है। अब ऑप्शन बी आपका बार हो गया। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा CH3 बिकॉज दिस इज +R एंड +I।
Cl क्यों कम होगा? दिस इज प्लस आर एंड माइनस आई, एंड दिस इज सिंपल। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 2 114। 114 में आपको आंसर दिया है C 2 1। दिस माइनस आर, दिस माइनस आई ने इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर को कम कर दिया। माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींच लेना, रिंग को डीएक्टिवेट कर देना। सो नाउ इसका आंसर होगा सी 2134। 2134, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, बहुत सिंपल है। इथाइल बेंजीन व्हेन ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। इथाइल बेंजीन का फॉर्मूला है बेंजीन रिंग अटैच विद C2H5। यहां पर मैं अटैक करा रहा हूं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। वी नो दैट इथाइल इज अल्काइल, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इसके पैरा पे अटैक करेगा। तो आपका आंसर होगा C2H5 और इसका पैरा पे आएगा Br। तो आंसर होगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 116, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन रिएक्टिविटी ऑर्डर, फर्स्ट है बेंजीन, सेकेंड है बेंजीन रिएक्ट विद NO2, ये तो लास्ट में जाएगा। ये फर्स्ट है, सेकेंड ये दिया है, थर्ड है बेंजीन रिंग अटैच विद NH COCH3, N पे लॉन पेयर है, दैट्स वाई प्लस आर। और फोर्थ दिया है बेंजीन रिंग रिएक्ट्स विद आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल में प्लस आर एंड प्लस आई दोनों। सो ऑर्डर आप आराम से निकाल सकते हैं, सबसे लास्ट में होगा 2। तो ये तो फॉर श्योर है कि इसका 3 में है प्लस आर प्लस आई, सो 3 इज मोर रिएक्टिव देन 4 देन 1 and then second. This reaction is very very important. This is the reactivity order of towards substitution reaction. PCB and PCM students please ये substitution order जो है उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। If you learn plus r and minus i, प्लस आर माइनस आई, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को कर पाओगे। अगेन मैं बोल दूं, बेंजीन रिंग पे जितना ज्यादा प्लस आई होगा वो उतना ही रिच होगा और उतनी ही जल्दी एक्टिवेट होगा, उतनी ही जल्दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। सो वी कैन से मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप बेंजीन को रिएक्शन के लिए मोटिवेट करता है, मोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बेंजीन को डीएक्टिवेट करता है फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 117, the presence of nitro group in a benzene, nitro is minus r minus I, तो definitely deactivate करेगा रिंग को towards electrophilic substitution reaction। तो आंसर होगा A। क्वेश्चन नंबर 118 आप खुद से सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन है, एक है बेंजीन, एक है टोल्विन, एक है क्लोरोबेंजोइक एसिड और एक है फिनॉल। फिनॉल प्लस आर प्लस आई है तो डेफिनेटली 4 सबसे ज्यादा होगा। तो आंसर क्या तो आपका A होगा, नहीं तो D होगा। अब सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा इसमें क्लोरोबेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजोइक एसिड इज माइनस आर माइनस आई ग्रुप, थर्ड सबसे लास्ट होगा। सो आंसर ए ही होगा। 118 का आंसर आपको ए दिया है। सो प्लीज क्वेश्चन नंबर 119, अगेन वही सेम क्वेश्चन है। बेंजीन रिंग ए ऑप्शन में है, रिएक्ट विद NO2, बेंजीन रिंग अटैच विद OH। सब ग्रुप का आप लिखते जाइए। NO2 इज माइनस आर माइनस आई, OH इज प्लस आर प्लस आई, C बेंजीन रिंग अटैच विद Cl, दिस इज प्लस आर एंड माइनस आई, और D है बेंजीन रिंग अटैच विद CH2OH। ये तो एरोमेटिक कंपाउंड ही नहीं। सो नाउ योर आंसर इज B बिकॉज प्लस आर एंड प्लस आई इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 120 भी बहुत सिंपल है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, पूछा है विच इज मोर रिएक्टिव। तो जितना कम डीएक्टिवेटिंग होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव, या वी कैन से जितना ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप उतना ज्यादा मोर रिएक्टिव। सो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, सी आंसर दिया होगा, सॉरी डी आंसर दिया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 121 में यू हैव बेंजीन रिंग रिएक्ट विद HNO3 प्लस H2SO4 का मिक्सचर, you will have nitrobenzene।
We know that nitro is meta directing because this is minus R and minus I. ये लर्न होगा तब अच्छे से क्वेश्चन होगा. अब यहां पर आप अटैक करा रहे हो Br2 FeBr3, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो NO2 के मेटा पे जाएगा. सो नाउ यू विल हैव आंसर इज बेंजीन रिंग अटैच विद NO2 और यहां पर आ जाएगा Br. सो नाउ इसका आंसर होगा ए. क्वेश्चन नंबर 122. बेंजीन रिंग reacts with CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3 to form toluene. 123. Chlorobenzene is plus R and minus I और ऑर्थो पैराडायरेक्टिक. क्वेश्चन नंबर 124 पीछे का ही आपका अगेन आंसर इसका द फंक्शन ऑफ AlCl3. ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है बिकॉज ये आपके न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कर लेता है. So now benzene cannot undergo elimination. Now 126 आप कर लोगे, 127 आप कर लोगे, 128 भी हो जाएगा. 129 the reaction of toluene in with chlorine. 129 you have toluene. Toluene is ortho paradirecting because this is plus R and plus I. So इसका अगर आप क्लोरिनेशन कराओगे with Cl2 in the presence of anhydrous AlCl3, so you will get CH3 और इसके पैरा पे होगा Cl. Now question number 130. Attacking of reactive or electrophile species nitration of benzene is NO2 plus. Question number 131. Necessary condition for halogenation are, ये भी आपको हो जाएगा. The attacking species in sulfonation benzene is SO3. ये लर्न करना. सल्फोनेशन में SO3 एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल. क्वेश्चन नंबर 134 भी हो जाएगा, 133 भी हो जाएगा, 135 भी हो जाएगा. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 141. इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा. 141 आंसर डी है इसका. 141 अगर आपको बेंजीन से क्लोरोबेंजीन चाहिए तो डेफिनेटली बेंजीन से क्लोरोबेंजीन चाहिए तो एनहाइड्रस AlCl3 यूज करेंगे और बेंजीन हेक्साक्लोराइड चाहिए तो आप डायरेक्ट सनलाइट यूज करोगे. क्वेश्चन नंबर 142 हो जाएगा, इजी है. 143 विच इज फॉर्म व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ये भी हो जाएगा. C6H6Cl6 ये अपन ने किया था बेंजीन विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन. नाउ क्वेश्चन नंबर 144. एडिंग ऑफ Cl2 to benzene in the presence of AlCl3 is an example of substitution. 145 भी आपसे हो जाएगा. प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन. 145 इफ यू हैव नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का अगर अपने को नाइट्रेशन कराना है तो वी यूज HNO3 plus H2SO4 का मिक्सचर. NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग, सो आने वाला ग्रुप NO2 के मेटा पे जाएगा. सो आंसर हो जाएगा 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन. आंसर होगा 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन. क्वेश्चन नंबर 146. आफ्टर हाइड्रोजोलाइसिस ऑफ बेंजीन द प्रोडक्ट इज बेंजीन ट्राइआजोनाइड. नोट हाइड्रोलिसिस बोला उसने. इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं. 152 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लिंडेन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ बेंजीन with anhydrous AlCl3. मैंने आपको सिखाया था in the presence of sunlight. Question number 153. Benzene can be obtained by heating either sodium benzoate with X or phenol with Y. तो मैंने आपको सिखाया था कि फिनॉल का करना पड़ता है रिडक्शन in the presence of zinc. And second thing sodium benzoate with soda lime. तो आंसर होगा soda lime plus zinc dust. 154 पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं. नाउ क्वेश्चन नंबर 157 पहले ही हो चुका है. 157 में ए बनेगा नाइट्रोबेंजीन, बी बनेगा मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन. आंसर होगा ए. क्वेश्चन नंबर 158. क्वेश्चन नंबर 158 में आपको अगेन रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है. पहला है बेंजीन रिंग अटैच विद CH3. CH3 इज प्लस R एंड प्लस I, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा. सेकंड है बेंजीन रिंग रिएक्ट विद COOH, सबसे लेस रिएक्टिव होगा. और एक है बेंजीन, तो इसका आंसर होगा 1, देन 3rd, देन 2.
तो आंसर इसका हो जाएगा बी। अगेन इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न करना है। मोर प्लस आर प्लस आई more reactive towards substitution reaction, minus R and minus I less reactive towards substitution reaction. Question number 159, this is also very important. CaC2 कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस, ये मैंने आपको अल्काइन में एक्सप्लेन किया था। इससे बनता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH Fe रेड हॉट आयन ट्यूब। सो इसके ट्राइमराइजेशन से आपने बनाया था बेंजीन, एंड नाउ CH3Cl का अटैक हो रहा है इस पे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो आंसर होगा बेंजीन रिंग अटैच विद CH3, दिस इज नोन एज टॉल्विन। आंसर हो जाएगा सी फॉर क्वेश्चन नंबर 159। नाउ क्वेश्चन नंबर 160, बेंजीन डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन बिकॉज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में इसका रीजन लिखवाया था। Question number 161, benzene ring react with X in presence of anhydrous AlCl3 will give you benzene ring attached with COR। तो आपको पता ही है RCOCl होगा। Question number 162, a catalyst that can be employed for Friedel-Crafts acylation। तो आप वो देखो जो लुईस बेस हो, तो लुईस बेस होना चाहिए और एनहाइड्रस होना चाहिए। तो आंसर शुड बी बी, क्योंकि डी आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रेटेड दिया है। क्वेश्चन नंबर 162 में आंसर होगा बी, एनहाइड्रस मस्ट होना चाहिए एंड विथ लुईस एसिड। तो यहां पर दिया है BCl3 इज लुईस एसिड। 163 आपसे हो जाएगा, 164 भी हो जाएगा, 166 भी हो जाएगा। 166 में अगेन सॉल्व कर देता हूं। अगेन रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है आपका। ए है 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। ये तो आपको पता चल गया होगा कि दो ग्रुप लग गए आपकी बार माइनस आर माइनस आई, तो सबसे लेस रिएक्टिव तो 1 ही होगा। दूसरा फिनॉल, वेरी गुड, प्लस आर एंड प्लस आई, ये मोर रिएक्टिव होना चाहिए। थर्ड है 2 नाइट्रोफिनॉल, ये फिनॉल से कम होगा। क्यों होगा? OH इज प्लस आर प्लस आई, लेकिन नाइट्रो ग्रुप लगने से उसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। और फोर्थ पे भी ब्रोमीन लग जाने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। सो नाउ ऑर्डर की अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव होगा 1, ऑप्शन ए बार हो गया। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो है सेकंड। तो आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देन होगा 4, देन 3। 4 क्यों 3 से ज्यादा रिएक्टिव है? बिकॉज NO2 is purely minus R and minus I, जबकि Br is plus R as well as minus I। तो आंसर होगा 1 4 3 1। आंसर इसका दिया होगा 166 C। क्वेश्चन नंबर, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल विल गिव, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल OH is plus R, 167। क्वेश्चन नंबर 167 में सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, यू हैव फिनॉल और इसका कर देंगे सल्फोनेशन। तो बताइए फिनॉल कैसा है? प्लस आर एंड प्लस आई, तो डेफिनेटली ऑर्थो एंड पैरा दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। आंसर डी दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 168, मिथाइलेशन ऑफ बेंजिल्डिहाइड विल गिव, बेंजिल्डिहाइड बेंजीन रिंग अटैच विथ CHO, दिस इज माइनस आर एंड माइनस आई। अगर इसका करना है मिथाइलेशन CH3Cl, तो CHO के मेटा पे CH3 आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 169, क्वेश्चन नंबर 169 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स नाइट्रेशन। समझा होगा, सबसे लेस रिएक्टिव वो होगा जिसमें माइनस आर माइनस आई वाला ग्रुप होगा। तो आंसर होगा नाइट्रोबेंजीन। टू प्रिपेयर मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन द सीक्वेंस इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 170 में बोला है कि मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, बेंजीन रिंग पे नाइट्रो ग्रुप डाल दो, क्योंकि नाइट्रो मेटा होता है। तो पहले आप रिएक्शन कराओगे HNO3 प्लस H2SO4 का मिक्सचर, जिससे बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। एंड वी नो दैट नाइट्रो ग्रुप
नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। सो अब यहां पर आपको जो भी बनाना है उससे रिलेटेड डाल दीजिए। क्लोरो बनाना है तो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आपके पास बन जाएगा बेंजीन रिंग अटैच विद NO2 और मेटा पे होगा Cl। नाउ क्वेश्चन नंबर 171, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन मोनोब्रोमोनेशन ऑफ टोल्यूइन। तो 171 में दिया है टोल्यूइन और इसका करना है मोनोब्रोमोनेशन, एक ही मोल Br का टैग कराना है। अब स्टूडेंट आप सब लोग समझदार है, CH3 प्लस R प्लस I दोनों, इसके ऑर्थो और पैरा पे अटैक करवा दो, लेकिन मेजर पूछा है तो पैरा, और पैरा का पोजीशन होता है 4, तो आंसर होगा 4 ब्रोमोटोल्यूइन। आपका जो ब्रोमीन है वो CH3 के 4 पोजीशन पे लग जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 172 मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। 173, इन लीवर बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड, ये कार्सिजिनोक नेचर जो दिया है आपको लास्ट पेज पे, उस पे आपको दिया, इसका आंसर है बेंजोपायरीन। प्लीज स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से सुन लिया तो डेफिनेटली आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जाते जाते मैं आपको एक और क्वेश्चन देके जा रहा हूं। यू हैव बेंजीन react with HNO3 plus H2SO4 का mixture will give you A. It will react with Cl2 in the presence of AlCl3 which is anhydrous, will give you B. तो स्टूडेंट्स A बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन और B बन जाएगा नाइट्रो इज मेटा डायरेक्टिंग, तो NO2 के रेस्पेक्ट में मेटा पे Cl आ जाएगा। स्टूडेंट्स केवल दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, प्लस आर माइनस आई, माइनस आर प्लस आई, सबके आप ऑर्डर लर्न करो। एक चीज का याद रखना, फॉर बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन तभी आपका रिएक्टिव होगा जब आपका बेंजीन रिंग अटैच होगा प्लस आर और प्लस आई ग्रुप से। सो नाउ स्टूडेंट्स, ट्रिक नंबर सेकंड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड जो भी डाउट है वो मैं आपका देख लूंगा। In the next week, I will upload a practice paper of aromatic compounds जिसका डिस्कशन अपन Zoom लाइव ऐप पे करेंगे। So now students, please revise this aromatic compound as well as blue book। कल blue book finish कर दो अच्छे से। So now students, clip number 1 and clip number 2 both are very very important for you।